what do you mean by money supply? It is the first and basic measure of money supply, also known as transaction money. सर मनी सप्लाई के बाद क्या? Also known as transactions money. Since it can directly be used for making transactions. It can directly be used for making transactions. It is the most liquid measure of money supply. It is the most liquid measure of money supply. Since the components can directly be used as a medium of exchange. The components of M1 are as follows. The components of M1 are as follows. M1 is equal to CC, capital में लिखो CC plus DD plus OD. CC plus DD plus OD. नीचे लिखिए, where CC is सर CC plus DD, D for Delhi, DD plus OD, where CC is equal to currency and coins with public, DD is equal to सर कॉइन के बाद क्या बोला? with public. DD is equal to demand deposits of commercial banks, which can be encashed at any point of time, Which can be encashed at any point of time by using, हो गया, checks facility. बेटा सीसी के आगे कहीं ब्रैकेट में जगह है तो लिख लीजिए लीगल टेंडर मनी ओब्लिक फिएट मनी. लीगल टेंडर मनी ओब्लिक फिएट मनी. सर ओब्लिक के बाद क्या? फिएट, FIAT, फिएट. F फॉर फ्रेंडशिप, IAT. समझ रहे हैं? ये सरदार जी का शुरू किया फिएट क्या होता है? फिएट, फिएट नाम की एक गाड़ी आती थी बेटा. फिएट होता है Yes, जिसको sir. लॉ सपोर्ट करता है. फिएट इज एनीथिंग व्हिच इज सपोर्टेड बाय लॉ.
ठीक है, तो ये जो फिएट मनी होती है, करेंसी, कॉइन्स, इसको लॉ सपोर्ट करता है बेटा, तभी तो ये चलता है, नहीं तो ये क्यों चलेंगे। ये 2000 का नोट है बेटा, 2000 का नोट किस दिन फाड़ के देख, चवन्नी का न बिके, वो तो गवर्नर के साइन है तो बिक रहा है 2000 का। अगला लिखो बेटा, थर्ड काइंड, ओडी इज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। It includes deposits held by RBI. It includes deposits held by RBI on behalf of foreign banks, governments, public financial institutions, World Bank, etc. Next लिखो बेटा सेकंड, M2. It is a broader concept of money supply as compared to M1. In addition to M1, also includes saving deposits with post office saving bank. With post office. Saving bank. सर विद के बाद क्या? Khalad, your voice is breaking. You can chat. Chat में लिखो. सर विद के बाद क्या? Along with post office saving bank. नीचे की इक्वेशन बना के लिखिए, M2 इज इक्वल टू, इसी में एक इक्वेशन बनाइए, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस saving deposit with post office saving bank. Saving deposit with post office saving bank. M1 plus. Sorry? M1 plus. Saving deposit with post office saving bank. कितने पास है कितने दूर है चाँद सितारे। नीचे लिखिए बेटा, इसी में अभी saving deposits with post office, saving deposits with post office cannot be withdrawn by check, therefore Karan, therefore they were not included under demand कौन की deposit. बात क्या है? Therefore they withdrawn by check, therefore they were not included
under demand deposits. Under demand deposits. अब लिखिए M3. सर बस एक वर्ड बताइएगा, सेविंग डिपॉजिट के बाद क्या है स्टार्टिंग में इसी में? Saving deposit with post office saving bank. अब लिखिए M3. This concept is again broader as compared to M1. In addition to M1, it also includes net time deposits with banks. In addition to M1 के बाद क्या था? It also includes net time deposits with banks. M3 is equal to M1 plus net time deposits with banks. Here time deposits are those in which money deposited cannot be withdrawn before a specified period of time. Deposits के बाद क्या सर? Money deposits. Deposited cannot be withdrawn before a specified period of time. Fourth लिखिए बेटा last M4. M4. It is the broadest concept of money, measure of money supply it includes total deposits with post office saving bank in addition to M3. So M4 is equal to M3 plus M3 plus total deposits with post office saving bank. M3 plus total deposits with post office saving bank. लिखिए बेटा ये M4 तक लिखने के बाद अगला लिखिए important facts about measures of money supply. Important facts about measures of money supply.
ये क्वेश्चन है। उसी का पार्ट है बेटा, उसी आंसर का। पहला फैक्ट, all four measures of money supply are different from each other in terms of liquidity. In terms of liquidity, सर ये आप रिपीट कर सकते हो? all measures of money supply are different in terms of liquidity. अंदर ही है। With M1 being, ये ऊपर ही पड़ी हुई है। With M1 being most liquid and M4 being least liquid. M1 is the most liquid and M4 is the least liquid. Fact number 2. All measures of money supply are different in terms of broadness डिफरेंट के बाद क्या बोला? in terms of broadness, broader, BROADER, broadness, where M1 and M2 are narrow concepts of money supply and M3, M4 are broader concepts of money supply. Third fact, M3 is widely used measure of money supply सर M3 is widely used के बाद क्या? measure of money supply it is also known as, बताइए लिखिए, it is also known as aggregate monetary resources of the society. Aggregate monetary resources of the society. ऑल्सो के बाद क्या कहा सर? Known as aggregate monetary resources of the society. Of society सर? Society. Society. लिखे, समझे बेटा पहले इसको, हम फिर आगे बढ़े। हमने कहा मनी सप्लाई किसको कहते हैं? आंसर ये था, मनी सप्लाई का मतलब है बेसिकली जितना भी पैसा लोगों के पास एक वक्त पर है देश में, उसके टोटल को, उसके सम टोटल को हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई। पूरे देश में सभी के पास जितना भी पैसा एक समय पर है उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। अब यहां पर पंगा क्या खड़ा होता है कि मनी सप्लाई में
हम क्या इंक्लूड करें और क्या ना करें मनी सप्लाई में। अब जैसे मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास घर में तो कोई पैसा है ही नहीं, मैं तो सब बैंक में रखता हूं। सरदार जी कहते हैं मेरा तो सारा काला पैसा है, जो पड़ा है घर पड़ा है। अब बैंक में भी कई तरह का पैसा है, कुछ लोगों का पैसा कहीं सेविंग अकाउंट में पड़ा है, कुछ लोगों ने एफडीज में रखा हुआ है। तो मनी सप्लाई में कौन से पैसे को कंसिडर करें? मनी सप्लाई में हम कौन से वाले पैसे को कंसिडर करें? तो यहाँ पर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई दिए हैं। कितने मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई दिए हैं? 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में सबसे पहले M1 में हमने लिखा DCC, यानी कि जितनी करेंसी हमारे पास पड़ी है, जितने कॉइन्स पड़े हैं। DD यानी डिमांड डिपॉजिट्स, अगर बैंक में हमारे पास सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो इसमें आएगा, जिसको हम चेक काट कर निकाल सकते हैं। वो किस में आएगा? CC और DD में, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो होता है जिसको हम कभी भी हम अपना विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड पर। एक होता है टाइम डिपॉजिट, जिसको आप टाइम से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, जो FD होता है। जैसे सरदार जी के लिए इनके पापा ने इनके दहेज के लिए जो पैसा है वो FD में रखा है। जब इनकी शादी होगी तो दहेज के लिए वो पैसा निकालेंगे और लड़की वालों को दे देंगे। दैट इज FD। उससे पहले नहीं निकाल पाएंगे। सुन रहे हो सरदार जी? तो FD जो पैसा है दैट इज टाइम डिपॉजिट्स, और DD यानी डिमांड डिपॉजिट आप जब भी निकाल सकते हो। तो CC प्लस DD प्लस OD। RBI के पास अगर कोई और डिपॉजिट्स है, उल्टा 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 ट्यूब को वापस बाहर की तरफ, तो OD यानी अदर डिपॉजिट्स विद RBI। निकालो इसको बाहर, निकालो, घुमा के लगाओ। हाँ, तो अदर डिपॉजिट्स विद RBI यानी कि RBI के पास किसी फॉरेन बैंक का, किसी वर्ल्ड बैंक का जो पैसा पड़ा है, दैट इज अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। तो वो अगर है तो वो इसमें इंक्लूड होगा। इसमें एक बात आप लिख सकते हो, जो अदर डिपॉजिट्स विद RBI है ये बहुत मिनिमम सा वैल्यू होता है, तो इट डज नॉट मैटर मच। इसका ट्रांजैक्शंस का कोई लेना देना नहीं। फिर आया M2 में हमने M1 के साथ साथ क्या इंक्लूड कर लिया? आपको मालूम है आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो पोस्ट ऑफिस में भी। आपको शायद आधे से ज्यादा लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा, लेकिन आप खोल सकते हो पोस्ट ऑफिस में। आप एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, उसमें पैसे जमा करा सकते हो, निकाल सकते हो, मगर उसमें पैसे आप चेक के थ्रू नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि जब आपका मन करे तब आप निकाल सके, नहीं, उसकी कुछ लिमिट्स हैं। तो आप उससे पहले वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। आप उसका चेक काट कर किसी को नहीं दे सकते। जैसे मेरे अकाउंट में कुछ पैसा है तो उसका काट कर मैं सोनर चावला को दे सकता हूँ, सोनर चावला जाके कहीं से निकलवा ले, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अगेंस्ट में चेक नहीं दे सकता। ठीक है, राइट? तो पोस्ट ऑफिस में चेक की फैसिलिटी नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चेक की फैसिलिटी नहीं होती पोस्ट ऑफिस में, तो वो सेविंग बैंक जो है दैट इज अ सेकंड, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है दैट इज इंक्लूडेड अलोंग विद M1, तो ये बन जाता है M2। फिर M3 में हमने M1 के साथ टाइम डिपॉजिट इंक्लूड कर लिया। वो जो मैंने अभी बताया था सरदार जी के लिए इसके पेरेंट्स ने जो FDs कराई हुई है, वो कब खोलेंगे? जब शादी होगी इसकी, तब लड़की वालों को जो दहेज देना होगा, तब हम वो पैसा वहां से निकालेंगे FD में से। सो दैट इज टाइम डिपॉजिट्स। वो टाइम डिपॉजिट इंक्लूड करेंगे M1 के साथ। सीधी आंखों से देख, यहाँ पर सरदार जी सिंह इज किंग, तो वो यहाँ पर अगर हम M1 के साथ इंक्लूड कर दे टाइम डिपॉजिट्स, सो इट विल बिकम व्हाट? M3। M1 प्लस सेविंग बैंक M2 बन गया, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट M3 बन गया। कोई बच्चा ये गलत फहमी सोच सकता है कि सर से गलती हुई है, M3 जो है वो M2 में प्लस करके आएगा। मैंने सुबह सुबह बिल्कुल नहीं पी है बेटा, होशो आवाज में बता रहा हूं कि M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग बैंक, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। अब M4 M3 प्लस ऑल अदर डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। पाशु पीछे देखो, ऑल अदर डिपॉजिट्स यानी सिर्फ सेविंग बैंक डिपॉजिट नहीं, बाकी डिपॉजिट्स भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो वो M4 बनेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो M4 में हमने सभी कुछ इंक्लूड कर दिया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लिक्विडिटी, बेटा कैश में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, तो M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड है, और M4 जो है
वो लीस्ट लिक्विड है क्योंकि उसमें तो टाइम डिपॉजिट्स है, जब वो टाइम होगा तब पैसा निकल पाएगा। पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक है, वो भी लिक्विड कम है। तो अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा लिक्विड M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4। लिक्विडिटी का मतलब समझते हो ना, जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। करूँ यहीं बैठे रहो या यहाँ आ जाओ। तो लिक्विडिटी के टर्म्स में M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है, फिर M2, फिर M3, फिर M4। और अगर ब्रॉडरनेस की बात की जाए कि किसमें ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो M4 में सबसे ज्यादा है, फिर M3 में, फिर M2 में, फिर M1। अगर लिक्विडिटी जाएंगे तो सीधा M1, M2, M3, M4। ब्रॉडरनेस जाएंगे तो उल्टा M4, M3, M2, M1। इज दैट ओके? गोट इट और नॉट गोट इट? यस सर। ठीक है। Got it, sir. अगला क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट, लिखो बेटा, कैलकुलेट M1, M2, M3, M4 फ्रॉम फॉलोइंग। करेंसी विद पब्लिक 8,000, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स 10,000, सर करंट पब्लिक कितना था? करेंसी विद पब्लिक कितना था बेटा? मैंने 8,000 बोला था। 8,000। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स 10,000, other deposits with RBI, other deposits with RBI 3,000, other deposits with RBI 3,000, total deposits with post office 20,000, time deposits with banks, time deposits with banks 50,000, 50,000, post office saving bank deposits 5,000। लास्ट वाला रिपीट करना, क्या बेटे? लास्ट वाला। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट 5,000। निकालें बेटा M1, M2, M3, M4। बस वैल्यूज डालनी है, कुछ नहीं करनी। करो, शाबाश। लिखिए बेटा, अगला क्वेश्चन लिखिए। आफ्टर demonetization, people deposited the old currency their old currency into their bank accounts it will decrease the money supply in economy. It will decrease the money supply in economy. Defend or refute? से इकोनॉमी क्या देते हैं? डिफेंड और रिफ्यूट। आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, अग्री करते हैं या नॉट अग्री करते हैं? कितने पास है कितने? आंसर लिखिए। द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड the deposit of old currency by people with people reduces the currency held by public
reduces the currency held by public, सर ओल्ड करेंसी के बाद क्या है? reduces the currency held by public, and increases the demand deposits held by commercial banks. Demand deposits held by commercial banks. By the same amount डिमांड डिपॉजिट के बाद क्या था? with the commercial banks with the same amount. So there will be no change in the total money supply of economy. Total money supply of economy. However, money supply will decrease permanently to the extent money does not सर डिक्रीज के बाद क्या है? permanently to the extent money does not re-enter the system. Money does not re-enter the system. उसने कहा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने अपने घर में से करेंसी ले जाकर बैंक्स में जमा कर दी। क्या इससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी? हमने कहा नहीं साहब। क्यों? हमारे हाथ में जो पैसा था यानी M1 का कंपोनेंट वो कम हो जाएगा। लेकिन वो पैसा कहाँ गया? बैंकों में गया, हमारे अकाउंट्स में। अगर बैंकों में हमारे अकाउंट्स में गया वो पैसा तो वो डिमांड डिपॉजिट में चला गया यानी M2 में चला गया। यार M1 में नहीं रहा, M2 में तो रहा। तो वो पैसा मनी सप्लाई में है, M1 में नहीं तो M2 में है। मगर मनी सप्लाई रिड्यूस नहीं हो गई देश में से। देश में मनी सप्लाई उतने की उतनी ही रही। हमने लेकिन एक लास्ट में लाइन लिख दी, ऐसा पैसा जो परमानेंटली बाहर चला गया और उसने वापस नहीं आना, इट विल नेवर कम री एंटर द सिस्टम, उसे हम कह सकते हैं कि उसने मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दी। लेकिन लोगों के हाथ से कैश लेकर अगर हमने जमा कर दिया है बैंकों में, तो बैंकों के पास जो पैसा चला गया है वो मनी सप्लाई को रिड्यूस नहीं किया उसने किसी भी तरीके से। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? What is legal tender money or fiat money? Fiat, F-I-A-T. It is a kind of money. क्यों? It is a kind of money which can be legally used for making transactions. अगला लिखिए लीगल टेंडर मनी के बाद नेक्स्ट लिखिए व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। मैंने ये लिखवा दिया था ना, विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। नहीं सर, आप उसके बाद वो पॉज सर हो गए कुछ थे। नहीं बोला आपने मेकिंग ट्रांजैक्शन के बाद। अच्छा, तो फिर उसमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। फिएट मनी इज द मनी which is under fiat or order of government to act as अंडर के money, आगे
which is under fiat or order of government to act as money under law. बेटा फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी किसको कहते हैं? जो पैसा लॉ सपोर्ट करता है, जिसको कि लॉ कहता है कि हाँ भाई ये पैसा एक्सेप्टेबल है पूरे देश में, आप इसके बदले में कुछ भी खरीदिए बेचिए, दैट इज कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी या फिर फिएट मनी। लिखिए बेटा, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? It is the money produced by RBI and the government and it consists of two things. And it consists of two things. Number one, काम पूरा करके चाहिए करो, काम अधूरा मत छोड़ के जाइए कुछ। Number one, currency held by public. Number two, cash reserves with banks. Currency held by Public and cash reserves with banks. बेटा हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं? जिसके पीछे पावर है। पावर कौन सी है? सरकार की। तो हाई पावर्ड मनी इज बेसिकली जो जल्दी जल्दी आप जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या कैश में कन्वर्टेबल है, उसे हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश रिजर्व्स विद द बैंक, जो बैंक के पास कैश रिजर्व्स है, या जो आपके पास कैश रिजर्व है, दोनों ही हाई पावर्ड मनी, दोनों के पास पावर है, यू कैन इजीली यूज फॉर ट्रांजैक्शंस। तो हमारे पास जो पब्लिक के पास है या बैंक्स के पास जो कैश रिजर्व्स हैं, they are high powered, they can be easily used for any transactions and they are totally liquid, so उसे हम high powered money कहते हैं। Is that okay?